simple estimation by treating with the sodium thiosulfate reaging using Furrion as an indicator. ये भी नहीं होगा. The concentrations of chloride ion in water sample is estimated by the titration with the silver nitrate reagent using potassium chromate as an indicator. किसकी बात कर रहा है? Chloride ion in a water simple estimate by the titration with the concentration of the chloride ion. किससे किससे करते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट से. पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ए इंडिकेटर. पोटेशियम क्रोमेट ही होता है, डाइक्रोमेट नहीं होता है. नेक्स्ट चलते हैं. द कंसंट्रेशंस ऑफ क्लोराइड. यहाँ भी चिपकती है क्या? As per Indian Standard Specification for Drinking Water IS 055, what is the maximum acceptable fluoride? कितना होता है fluoride acceptable? इतना होता है. The finely divided dispersion of solid particle which is not visible to naked eyes cannot be removed by the ordinary filter is known as colloidal impurities. Colloidal impurities के बारे में बात करते हैं. वो divided impurity होती हैं जो solid particle which are not visible to naked eyes and contact removed by ordinary filter is also known as impurities. But these impurities associated with the organic matter having bacteria become the chief source of the epidemic. The color of water is mostly due to the presence of the colloidal impurity. The amount of colloidal impurities determine the color or taste. Suspended impurity की बात करें, the solid particle which disperse in the water large enough to remove by the filtration or settling sedimentation. Dissolved impurities की बारे में बात करते हैं. Impurities like organic compound, organic salt or gases in the form of solid, liquid or gas which are dissolved when the water is known as dissolved impurities. The desirable limit of the chloride content as per BIS in water domestic supply should not exceed is the 250 ppm. The desirable limit of chloride content as a BIS standard in the water domestic supplies should not exceed 250 ppm. ठीक है. अब बात करते हैं एक्सेस ऑफ नाइट्राइट की वजह से क्या होता है. ब्लू आइवी डिजीज़ हो जाता है. फ्लोराइड की वजह से बोन्स ख़राब हो जाती है. लैक ऑफ आयोडाइड की वजह से, क्लोराइड की वजह से ये होता है. नेक्स्ट चलते हैं. एक्सेस नाइट्राइट की वजह से, फ्लोराइड की वजह से, आयोडाइड की वजह से और इसकी वजह से. द मैक्सिमम एसिडिटी इन वाटर विल अकर एट अ pH वैल्यू 0 पे. मैक्सिमम एसिडिटी. अब बात करते हैं मिनिमम डिजोल्ड ऑक्सीजन विच शुड ऑलवेज प्रेजेंट इन द वाटर टू सेव एक्वाटिक लाइफ 4 ppm. द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए पोर्टेबल वाटर शुड नॉट एक्सीड द टोटल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर 100 per cc. The total amount of bacteria in potable should not exceed 100 per gram center to center. The pH value of potable water is D 6.8. The pH value of potable water is 6.8. The equivalent 7 grams per liter of the part million would be 7,000. The equivalent of 7 grams liter is per billion 7,000. For the public water supply, the threshold number test order should not be more than 3. फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई द थ्रेशोल्ड नंबर टेस्ट ऑर्डर शुड नॉट बी मोर देन 3 हो जाता है. द मेजरमेंट ऑफ कलर ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय द मीन्स ऑफ
टिंटोमीटर, ठीक है। द नंबर ऑफ कलर ऑफ वाटर इज कैरिड बाय द टिंटोमीटर। कभी कभी ऑप्शन भी देख लिया कर भाई। द मेजरमेंट ऑफ कलर ऑफ बेस्ट वाटर कैरिड बाय द मीन्स ऑफ टिंटोमीटर। द हार्डनेस इज एक्सप्रेस इन डिग्री ऑफ, किसमें, क्लार्क स्केल में। हार्डनेस किसमें एक्सप्रेस की जाती है, क्लार्क। द हार्डनेस इज एक्सप्रेस इन द डिग्री ऑफ पर क्लार्क स्केल। द एल्कलिनिटी इज कॉज्ड बाय द विच ऑफ फॉलोइंग पॉजिटिविटी चार्ज्ड, किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से। द परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है, डिजॉल्व सॉलिड परमिसिबल कितना होता है, 500 मिलीग्राम। द परमिसिबल डिजॉल्व सॉलिड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव क्या करता है, आयरन को रिमूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है, मैग्नीज को रिमूव करता है। उसके बाद मतलब एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज इन वाटर फिल्टर प्रेशर बिकॉज एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव द वाटर मोस्ट टॉक्सिक organic compounds in water like pesticides, heavy metal organic compounds. Activate carbon also remove the smalls in the water and make cloudy water clear or removing the color compounds in the water. Aeration of water is done to remove chlorine is when the chlorine is dissolved in water it react for hypochlorous acid with the hypochlorite ion when pH is less than chlorine exists in the water age. Yeah, elements or molecular chlorines, element or molecular chlorine. When the chlorine is dissolved in water it reacts to the form of hypochlorous acid and hypochlorite ions at the pH less than the chlorine exists in the water. Element or molecule chlorines की बारे में बात करते हैं. At pH less than 5 chlorine does not dissolve in the water and remain element or molecular chlorine. अगर pH greater than 5 है तो chlorine dissolved in and produce HOCl, ठीक है. एलिमेंट और मोलिकुलर क्लोराइड्स. द क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म एलिमेंट, रिमेन इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोरस, रिमेन इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोराइड्स, रिमेन इन द फॉर्म ऑफ, नहीं पहला जाएगा एलिमेंट एंड मोलिकुलर क्लोरीन. हो जाएगा, मेहनत करो. एक्सेसिव कंसनट्रेशन ऑफ सोलाइड सोडियम इन वाटर इज, एक्सेसिव कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम cause color problem, prevent corrosion of the metal surface and causes taste and odor problems. अगर एक्सेस हो जाएगा किसका, कंसनट्रेशन सोडियम का, सोडियम एक्सेस कंसनट्रेशन ऑफ द सोडियम इन वाटर तो causes taste and odor प्रॉब्लम कर देता है. ए वाटर सैंपल इज 5 ml इज मेड टू बी अप टू 300 ml विद डिस्टिल्ड वाटर. द सैंपल हैड द इनिशियल डिजॉल्व इथन 8 milligram per liter and after 5 days DO is 0. Here hence BOD of the sample was कितना होगा, BOD 5 days initial minus final into dilution factor. 8 minus 0 300 divided by 5, dilution factor कितना है, इस sample 5 ml is made about 300 ml with the distilled water, तो ये 480 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है. If the average seepage of a city is 95 into 10 की पावर 6 liter per day and the average 5 days BOD is 300 milligram per liter, the population equivalent of the city is assumed 5 day BOD per capita 20 degrees is 0.075. average BOD of 5 day कितनी है, 300. SC एवरेज सीवेज फ्लो कितना है, इतना है. टोटल BOD ऑफ 5 डे लोडेड इन डेली एवरेज के लिए तो 300 इंटू 95 इंटू 10 की पावर 6 हो गया 28,500 10 की पावर 6. डोमेस्टिक सीवेज क्वांटिटी कितनी है, 0.75. इसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन इक्वलेंट के लिए तो ये आ जाएगा 3,80,000. ठीक है, कैसे किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था 95 इंटू 300 इंटू, ठीक है, फिर जो आया उसको डिवाइड कर दिया था 5 डे BOD से. इफ द डिप्लीशंस ऑफ द ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 3 milligram liter after incubating 5 ml of the sewage, the diluted 300 ml of 5 days at 20 degree BOD of sewage will be, if depletion of oxygen is found to be 3 milligram per liter after incubation of the 5 ml, the dissolved oxygen 3 milligram per liter. ठीक है, डायल्यूशन फैक्टर की बात करें तो 250 डिवाइड बाई 5 तो हो गया 50. अब BOD ऑफ 20 से डिजॉल्व ऑक्सीजन इंटू डायल्यूशन फैक्टर, ये हो गया आपका 150. कैसे हो गया, ऐसे हो गया. डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इतना 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 हो गया, ठीक है.
If the depletion of oxygen is found to be 2.5 milligram per liter after incubation of the 2.5 milligram of seepage, the dilution with the 200 ml water and 5 days of 20 degrees, the BOD of the seepage कितना होगा? Oxygen found 2.5 liter, incubation 2.5 ml, seepage diluted 2.5 divided by 5 days, तो डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2.5 250 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2.5, डायलूशन फैक्टर हो जाएगा आपका, डिजोल्व ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। इनिशियल फाइनल नहीं है इसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 का 2.5 ही रह जाएगा। इफ़ द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फाउंड टू बी 5 ppm, इंक्यूबेटेड 2.5%, द सैंपल ऑफ 5 days ऑफ 20 डिग्री BOD ऑफ द सीवेज विल भी हो जाएगा। तो 5 days BOD ऑफ 5 days इनिशियल माइनस फाइनल एंड डिजोल्व ऑक्सीजन, इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल डायलूशन फैक्टर 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 5, क्योंकि 5 ppm है, तो ये हो जाएगा आपका 200। इफ़ द 5 day BOD ऑफ बेस्ट वाटर सैंपल इज ऑब्टेन्ड 190 मिलीग्राम पर लीटर, के बराबर 0.1, द अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सैंपल की बात करेंगे। तो 5 day BOD की बात करते हो, BOD ऑफ 4 day 1 माइनस 10 की पावर माइनस KDT, तो BOD निकालेंगे, BOD ऑफ 4 day BOD ऑफ 5 day डिवाइड बाई माइनस 5 KT, KD की वैल्यू निकालेंगे तो 0.34 K है, तो ये हो जाएगा 0.434 इंटू 0.1 की H-1 हो जाएगा। ठीक है, KDT की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 0.528 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 271। अब बात करते हैं 5 day BOD एट 20 डिग्री ऑफ सीवेज ऑफ 160 ppm, द डीऑक्सीजनरेशन कांस्टेंट इज 0.2 मीटर पर डे, द अल्टीमेट BOD की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 234। कैसे हो जाएगा? BOD बराबर 160 ppm, डीऑक्सीजन कॉन्स्टेंट के 0.2 पर डे हो जाएगा। जनरली BOD बराबर क्या होता है? 0.68 इंटू अल्टीमेट BOD। ठीक है, तो अल्टीमेट BOD निकालेंगे तो क्या होगा? BOD 5 डिवाइड बाई 0.68, तो 160 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 0.68, हैंस मोस्ट क्लोज ऑप्शन हो जाएगा 234 ppm। ट्रू रिलेशन बिटवीन द TOD एंड BOD एंड COD। TOD सबसे ज़्यादा होती है, COD उससे कम होती है, BOD उससे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए वेस्ट वाटर सैंपल 2 मिलीग्राम मेड ऑफ 300 इनिशियल BOD बॉटल डिस्टिल वाटर, इनिशियल डिजोल्व 8 mm, आफ्टर 5 days इज 2, सो द BOD ऑफ द बात करते हैं तो 5 day BOD इज टोटल कंज्यूम्ड बाय द डायल्यूट सैंपल एंड डायल्यूटेड सैंपल डिवाइड बाय अल्टीमेट सैंपल। इनिशियल फाइनल कितना हो गया? 300 डिवाइड बाई 5, 8 माइनस 2। If the depletion of the oxygen is 5 ppm, after incubation is 2.5%, the sodium sample is 5 day 20 डिग्री, the सीवेज बिल भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल फाइनल कितना है आपका? 2.5% इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 से कर देगा तो 200 आ जाएगा आपके पास में। इफ BOD ऑफ बेस्ट वाटर सैंपल, अबे पूरा तो 1 घंटा नहीं हो जाए, 20 डिग्री मिलीग्राम डीऑक्सीजनरेशन रेट ऑफ कॉन्स्टेंट 0.1 पर डे, तो अल्टीमेट BOD की बात करें तो 0.65 से कर देंगे। BOD ऑफ 5 day माइनस 1 माइनस KT, 100 5 days की BOD कितनी? 100 ml, अल्टीमेट BOD 1 माइनस 10 की पावर 0.1 इंटू 5 हो जाएगा, तो अल्टीमेट BOD निकलेगा तो उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो BOD कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज इतनी, देन वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर 0.3, अल्टीमेट BOD 5 day अल्टीमेट BOD 1 माइनस C की पावर माइनस KT, अल्टीमेट BOD की बात करें तो 0.2.10 की पावर इंटू 5 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, 316 हो जाएगा इसमें। अंडर आइडियल कंडीशन द COD TOC रेशियो शुड बी सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर कितनी होती है? 2.66। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर एंड नॉन डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बोथ आर डिकम्पोज, TOC टोटल कार्बोनेस, it calculated by converting carbonaceous organic matter into the CO2 and CO2 greater than TOC. The following zone are formed in polluted river under cell purifications: saturation level, zone of degradation, zone of depletion, zone of recovery, zone of clear water. Zone of clear water
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बीच प्रोग्रेसिव डाउन स्ट्रीम इन द पोल्यूटेड रिवर्स। तो सबसे पहले आएगा बी। ठीक है, 325 क्वेश्चन लगा दिए तुमने। बाय।